लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी सारे जो वर्टिकल्स हैं वो स्टडी कर चुके हैं फॉर डाउरी डेथ। आज जिस चीज को हमें कवर करना है दैट इज द रिलेशनशिप नोट मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में ऑफ सेक्शन 302 एंड सेक्शन नंबर 304 बी। ज्यादा नहीं है, इसके अराउंड सिर्फ नोट मेकिंग है। सो फटाफट से लिख ले हेडिंग सेक्शन 304 एंड 304 बी एंड सेक्शन 302। गुड इवनिंग अंकिता, आयुषी, राधिका एंड दिशा। ओके, सेक्शन 304 बी एंड सेक्शन 302 लिख ले। A two judges bench of Supreme Court in the case of Lakhjit Singh versus State of Punjab. A two judges bench of Supreme Court in the case of Lakhjit Singh. मैंने शायद कल लखबीर बोल दिया था, एक दो बार कंफ्यूज हो गया हूँ। तो लखजीत सिंह वर्सेस, ये हेडिंग है बेटे, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हाँ, अभी स्टार्ट किया। Where the accused were charged under section 302, where the accused were charged under section 302 and were convicted and sentenced, the two judges bench of Supreme Court in the case of Lakhjit Singh versus State of Punjab, where the accused were charged under section 302 and were convicted and sentenced for the said offence, both by the trial court and the high court, both by the trial court and the high court, both by the trial court and the high court. So Supreme Court came to the conclusion, SC लिख लो, वैसे समझ जाओगे। Supreme Court came to the conclusion, SC came to the conclusion that if the charge under section 302, if the charge under section 302 is not fully established, if the charge under section 302 is not fully established, the conviction granted by the courts is not proper. The conviction granted by the courts is not proper. Is not proper. आगे लिख लें। In the case of Rajbir versus State of Haryana, in the case of, हाँ नया केस है, Rajbir versus State of Haryana, हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ। In the case of Rajbir versus State of Haryana, a two-judge bench of the Supreme Court, directed all trial courts, 2011 का बेटे, 2011, directed all trial courts to ordinarily add section 302, ये अंडरलाइन कीजिएगा, to ordinarily add section 302 to the charge of, a two-judge bench of the Supreme Court directed all trial courts to ordinarily add section 302 to the charge of section 304B, थोड़ा सा तेज लिखो, to the charge of section 304B, कॉमा, ये पॉइंट है जिसको आपको हाईलाइट करना है कभी भी अगर 302 और 304B का सवाल है तो, कॉमा, so that death sentences can be imposed, in such heinous and barbaric crimes against women, in such heinous and barbaric crimes against women. अब प्रॉब्लम क्या हुई यहां पे ध्यान से समझिएगा। जो ये राजबीर का केस है, राजबीर के केस से एक डायरेक्शन मिल गया ट्रायल कोर्ट्स को कि भाई देखो, ऑर्डिनरली अगर 304B का मामला है तो आपको 302 लगाना पड़ेगा, मतलब लगाना चाहिए, दे शुड डू इट ऑर्डिनरली। ठीक, अब इससे सबसे बड़ी समस्या यह है कि जितने भी अब ट्रायल कोर्ट्स थे, जहां भी हाई कोर्ट की बात आ रही थी, सब लोग 304B के साथ 302 लगा रहे थे। ठीक, what happened was every other court started doing the same thing as the Supreme Court said कि भाई ऑर्डिनरली हर मामले में 304B के मामले में 302 लगाना शुरू कर दो। तो ये मामला फिर से कोर्ट के सामने दोबारा आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने अगेन ये मामला आया, लिख ले, बट a two judges bench, next paragraph, but a two judges bench in the case of Jaswinder Saini versus
जसविंदर सैनी वर्सेस एनसीटी दिल्ली, जसविंदर सैनी वर्सेस एनसीटी दिल्ली, explaining the ratio given in the Rajbir's case, explaining the ratio given in the Rajbir's case, उसका इंटरप्रिटेशन बताया था जसविंदर सैनी ने. Given in the Rajbir's case, held that the trial courts should not act mechanically, and add section 302 in the matters of section 304B and add section 302 charge में and add section 302 चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो in charge in the matters of section 304B, कॉमा, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे जब आप लिखें, without adverting to the evidence, adduced in the case and simply on the basis of, without adverting to the evidence adduced in the case and simply on the basis of the directions issued in the Rajbir's case, मतलब आप मुंह उठा करके सिर्फ राजबीर केस को आंख बंद करके फॉलो मत करो. जहां एविडेंस लगता है, जहां पे जरूरी लग रहा है, जहां पे सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि 302 यानी डेथ पेनल्टी जरूरी है, वहीं आप 302 लगाओ. अदरवाइज 302 लगाने की जरूरत है. देखो लखजीत सिंह के केस में ये कह दिया कि आप लगा सकते, ठीक, हर मामले में लगाने की जरूरत नहीं, ठीक. राजबीर ने कह दिया कि आप डेथ पेनल्टी ऑर्डिनरली लगाओ, कोई समस्या भी नहीं है, ठीक. लेकिन ध्यान से समझिएगा प्रॉब्लम क्या है. 302 आप सिर्फ उन्हीं मामलों में लगाओगे जिन मामलों में डेथ पेनल्टी देनी है, ठीक, जहां डेथ पेनल्टी देनी है. और डेथ पेनल्टी का सबसे बड़ा केवियट क्या है, सबसे बड़ी कंडीशन क्या है डेथ पेनल्टी देने की? डेथ पेनल्टी की सबसे बड़ी कंडीशन है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. तो सुप्रीम कोर्ट ने जसविंदर सैनी में ये कहा कि जो राजबीर केस बोल रहा है, राजबीर केस ये कहना चाहता है कि आप ऑर्डिनरली 302 मैकेनिकली मत लगाओ. जस्ट बिकॉज हम कह रहे हैं कि हम 304B के मामले में 302 लगाना है तो 302 उठा के लगा दोगे, नहीं. जहां आपको लगता है कि इट विल क्वालिफाई इन द कैटेगरी ऑफ 302, not just 302 but it will also fall in the category of rarest of the rare matters where in death penalty should be given, आप उसी मामले में लगाओ 300. वरना 304B के साथ भी पूरा ट्रायल चलाया जा सकता है, ठीक. क्योंकि आप एक बात सोचो, क्या हर मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी हो रही है? ये तो बहुत रिटोरिक सा सवाल. क्या हर, भाई जितने भी मर्डर के केस, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. जब हर मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी नहीं हो रही है तो हर 304B के मामले में जहां पे सफिशिएंट सेंटेंस है वहां पे आप 302 कैसे लगा सकते हो? यही पंगा है. इसलिए जहां बारबैरिक लगे, जहां एविडेंसेस वैसे लगे कि टॉर्चरस मैटर था, बहुत ही हॉस्टाइल मैटर था, बहुत ही ज्यादा बारबैरिक जघन्य अपराध है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आता है, वही लगाओ, ठीक. हाँ, जसविंदर केस एब्सोल्युटली करेक्ट भूमिका. जसविंदर केस इज सप्लीमेंटरी टू द राजबीर केस, ठीक. क्योंकि राजबीर ने समझा दिया, जसविंदर ने क्लैरिफाई कर दिया. जैसे अपना वो दोनों केसेस थे ना, बचन सिंह और मच्छी, वही सेम चीज यहाँ पे लगा दी, ठीक. हाँ, आप लगाओ, कोई समस्या नहीं है. लेकिन 302 लगाना है तो पहले देख लो कि भैया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के सर्कमस्टेंसेस वैसे लग रहे हैं क्या? लग रहे हैं, कर लो. नहीं लग रहे हैं, मत करो जबरदस्ती का. क्योंकि आप इस चीज को समझो, 304B का जो मामला है, देखो थोड़ा सा बिना जूरिस्प्रूडेंस को समझे अगर आप सिर्फ प्रोविजन रटते बोलते चले जाओगे तो समझ नहीं पाओगे. एक बात बताओ, 304B और 302 कौन सा मामला सोशल इविल का है? विच ऑफ द मैटर डील्स विद द सोशल इविल? 304B, यस करेक्ट. 304B और 302 में से सोशल इविल का मामला है 304B. एक पहला पॉइंट. दूसरा सवाल ये है कि आप सोशल इविल को पहले एड्रेस करोगे या रेगुलर मामलों को पहले एड्रेस करोगे? What should be addressed first? What should be having a proper fast track disposal? Social evil को हमेशा fast track disposal दिया जाता है. अब प्रॉब्लम समझे क्या हो रही है? प्रॉब्लम यही है कि अगर 304B के हर मामले को आप 302 में लेके गए, ठीक, just for the sake of punishment, तो यहां आपको पूरी तरीके से हर एक 304B के मामले में एक और सेक्शन प्रूव करना पड़ेगा. कौन सा सेक्शन? अगर आपको 304B के साथ 302 लगाना है, आपको एक सेक्शन और प्रूव करना पड़ेगा. विच सेक्शन? 300. यस करेक्ट, आपको 300 प्रूव करना पड़ेगा. ये पॉइंट है. और इसमें होगा क्या? इससे होगा क्या? 300 प्रूव करने में नुकसान क्या है? नुकसान ये है, दिस एंड दिस एग्जैक्टली, नुपुर करेक्ट, डिले कॉज करेगा, टाइम कॉज करेगा, बढ़ता जाएगा मामला, खिंचता जाएगा. सो देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ रीजन व्हाई जसविंदर सैनी इज सेइंग सो
कि भाई बोला है सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब ये नहीं तुम आंख बंद करके गधों की तरह हर केस में लड़ा दो, नहीं, आप डिस्क्रिप्शन लगाइए, आप न्यायालय भाई, आपके पास बुद्धि है, आप डिस्क्रिप्शन लगाए, जहां लग रहा है 302 लगाना लगा, जहां नहीं लग रहा मत लगाओ, लेकिन एविडेंसेस को देख के लगाओ। ठीक, ये पॉइंट आगे लिख, इसी केस में ये चीज बोला गया था। हाँ विस्डम आएगा सीधे, एक लाइन बस इसमें लिख लें, ऑल दैट दिस कोर्ट meant to say all same case just in the same, all that this court meant to say was that in a case where a charge alleging dowry death is framed, in a case where a charge alleging dowry death is framed, comma, a charge under section 302, a charge under section 302 can also be framed if the evidences of the case permits, can also be framed if the evidences of the case permits, if the evidence of the case permits. आशुतोष पॉसिबल है, पनिशमेंट एक ही मिलती है, स्वाभाविक सी बात है, लगाए जाते हैं चार्ज, बिल्कुल लगाए जाते हैं। मान लो कोर्ट को लग रहा है 302 का मामला है, ठीक, या मान लीजिए नहीं लग रहा है 302 का मामला, 304B 498 है, दोनों का लग सकता है आशुतोष, करेक्ट है बेटे, वो तो 498 तो एक तो पार्ट एंड पार्सल में चल जाता है, तो हुआ तो है रॉन्गफुल एक्ट। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों का पूरा कंप्लीट एरिया, हाँ ठीक ना, यहाँ पे आप लोगों का डाउरी डेथ पूरा खत्म होता है, दिस इज कंप्लीट डाउरी डेथ, एवरी एरिया ऑफ डाउरी डेथ हैज बीन एड्रेस्ड। ठीक, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स बताइए, हाँ अगर खुद वुमेन, मान लीजिए देखिए मैंने आप लोगों को दोनों चीजें बताई, स्टूडेंट्स को 304B और 302 में कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया। 304B और 306 का कंफ्यूजन भी फिर से मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। 304B में ऐसी सिचुएशन में अगर आप राइट को रख देते हैं, या जो महिला है, जो वाइफ है, उसको ऐसी सिचुएशन में रख देते हैं कि या तो आप खुद डेथ, मतलब खुद सुसाइड कर लो, खुद हमारे सामने जहर खा लो, खुद को गोली मार लो, या खुद को लटका लो, अगर ऐसा करो तो एक तरीका है, दूसरा वरना हम मारते हैं। ठीक, अगर आप इस स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को डाल देते हैं, ठीक है, तो फिर दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 304B। ये सीधे सीधे आप सामने वाले व्यक्ति को अपने वर्ड से भी तो मार सकते हो, हमने 299 में देखा था, यस 299 में ये चीज हमने देखी थी कि आप अपने वर्ड से भी सामने वाले व्यक्ति को मार सकते हो। वर्ड से कैसे मारोगे? यू विल पुश दैट पर्सन इन सच अ सिचुएशन जहां पे व्यक्ति खुद से डेथ कॉज कर ले, लेकिन उसके पास, ध्यान से समझिएगा, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति के पास अल्टरनेटिव है तो वो सुसाइड की कैटेगरी में आएगा। डू यू गेट दैट पॉइंट? डू यू गेट दैट पॉइंट? अगर सामने वाले व्यक्ति के पास बचने का तरीका है तो फिर वो सुसाइड की कैटेगरी में आएगा। भाई मैं किसी को, मैं नहीं भाई, कोई एक एक्स पर्सन किसी वाई पर्सन को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसको गालियां दे रहा है, उसके पेरेंट्स के बारे में बुरा भला कह रहा है, डाउरी रिलेटेड चीजें बोल रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। अच्छा ये एक्स नहीं बोल रहा है, एक्स की पूरी फैमिली बोल रही है। नाउ दिस इज 498 है, क्योंकि मेंटल हरासमेंट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जब तक इनकी तरफ से कोई एक्ट नहीं आता, एक्ट सीरियस नहीं आ रहा है, तब तक ये लोग सिर्फ क्रूएल्टी कॉज कर रहे हैं। ठीक, अब फिजिकल क्रूएल्टी भी हो सकती है, उसमें there's a diagonal to it कि हाँ वहां पे फिजिकल क्रूएल्टी भी हो सकती है, लेकिन डेथ नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। फिजिकल क्रूएल्टी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी। सो व्हेन वी लुक एट दिस पैरामीटर ऑफ X is not doing any act और फैमिली मेंबर्स कोई और एक्ट नहीं कर रहे, लेकिन मेंटल टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर इतना हो गया है कि Y feels helpless and she tries to commit suicide और commit suicide। 306 का मामला, ये 306 में चला जाएगा। दूसरी तरफ आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर दो, या फिर आप किसी व्यक्ति को और कोई चारा ना दो कि उसके पास डेथ कॉज करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब फिर 304B लगाया जाएगा। एंड इट हैज टू बी नेसेसरली, इट हैज टू बी विद रेफरेंस टू डिमांड ऑफ डाउरी, क्योंकि 304B लगाना है तो डाउरी चलेगा। ठीक है, सर 304B है, 306 के रिलेशन में नोट मेकिंग की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, नोट मेकिंग की जरूरत नहीं बेटा, मैं करवा दूंगा, बट देयर इज नो यूज टू इट, क्योंकि सेपरेट है, दो सेपरेट है। 304B और 302 में बेटा चीज ये थी कि एक में होमिसाइड था और दूसरे में भी होमिसाइड था, तो 302 304B ये ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। 304B 306 क्वेश्चन तो है, लेकिन वो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा। स्टिल मैंने इंटरव्यू की क्लैरिटी आप लोगों को दे दी है कि इंटरव्यू में हाउ यू हैव टू टैकल इट, हाउ यू हैव टू डील विद इट। सो ये फंडा है। ठीक सर, क्रूएल्टी जो होगी वो डीबी में जो क्रूएल्टी दी है उनको कंसीडर, हाँ उनको कंसीडर कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली जो जितनी भी क्रूएल्टी है वो डीबी एक्ट में चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। फेयर एनफ, और किसी का कोई डाउट? हाँ ठीक है, चलिए। नहीं तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है 304B, क्योंकि फिर आप सामने वाले को एक तरीके से आप उसकी डेथ ही कॉज कर रहे हो ना, बंदूक चलाने वाला हाथ आता नहीं है, आपने सामने वाले व्यक्ति को मजबूर कर दिया कि वो खुद के सर पे गोली मार ले तुरंत अभी इसी बात। ठीक, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो 304B एंड 306, हाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। 304B और 306 में फर्क क्या है? 304B इज कॉजिंग डेथ, 306 इज कॉजिंग
circumstances pushing to commit suicide. प्राइमरली तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ठीक। 304 बी इज कॉजिंग ऑफ डेथ, 306 इज अबेटमेंट, इंस्टिगेट करना, आप सामने वाले व्यक्ति को प्रोवोक करो, उसे इस प्रकार से भड़काओ, ठीक। इनडायरेक्ट डेथ है, हाँ इट इज इनडायरेक्ट डेथ। 306 में आप उस व्यक्ति को भड़का रहे हो, आप उस व्यक्ति को बोल रहे हो कि अरे तुम्हें क्या जरूरत है जीने की, ये लो जहर लो खाओ मर जाओ, एड कर रहे हो किसी भी तरीके से, हर तरीके से, जो भी तरीका है। 304 बी डायरेक्ट नेचर, 306 इनडायरेक्ट नेचर, 304 बी एक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ है, 306 एक्ट ऑफ अबेटमेंट है, एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है, एक्ट ऑफ इंस्टिगेशन। 304 बी के केस में, ठीक है, डेथ इज ऑब्वियसली सर्टेन, यहाँ पे डेथ सर्टेन होती है। 306 के केस में ध्यान से समझिएगा, 306 के केस में डेथ होना क्या कंपलसरी है कि आप किसी व्यक्ति, आप नहीं, कोई ए पर्सन किसी बी पर्सन को अवॉइड करे सुसाइड कमिट करने के लिए, वो सुसाइड कमिट करेंगे नहीं होता, क्योंकि सुसाइड है। हाँ कमिट कर लेंगे, 306 आएगा, वो सब सही है, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब तक कमिट किया नहीं है तब तक आप अबेटमेंट के लिए लायबल होते हो, ठीक। यस 306। अच्छा नेक्स्ट डिफरेंस 304 बी और 306 में फंडामेंटल ये सारे डिफरेंस तो होते ही, मेजर डिफरेंस ये होता है कि 304 बी उन जगहों पे अप्लाई किया जाता है जहां पे हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑफ डेथ। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑफ डेथ का मतलब है जैसे ब्राइड बर्निंग, केरोसिन का डब्बा लेकर के आए, केरोसिन का डब्बा एक सोती हुई महिला पे पूरा केरोसिन उड़ेला गया, उसके बाद आग लगाई गई, ये पूरा जो एक्ट है ये 304 बी का है। 306 ऑन द अदर हैंड इज अ रेगुलर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, वो मेंटल क्रुएल्टी से हो सकता है, फिजिकल क्रुएल्टी से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली डेथ कॉज कर रहे हो, यहाँ पे आप इनडायरेक्टली डेथ कॉज कर रहे हो। जो फाइन लाइन डिफरेंस स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है वो ये है कि अगर यहाँ से एक ऐसा एक्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि अबेटमेंट की इधर से राइट साइड से 306 से ऐसा एक्ट हो रहा है जो कि अबेटमेंट की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, हाँ इसमें 302 नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे 302 लगने की बात नहीं आती, यहाँ पे 302 लगने की बात नहीं आती, यहाँ पे 302 लगने की बात आती है, ठीक। 302 लगने की बात 304 बी में आती है। 306 की तरफ से अबेटमेंट हो रहा है, अबेटमेंट है, फेयर एनफ, लेकिन अगर अबेटमेंट के साथ, ठीक है, अबेटमेंट इस स्थिति का अबेटमेंट हो रहा है वेयर इन द पर्सन हैज नो से whether the person will survive or not। समझ में आया? रुक जाओ, सोशल मत जाओ, पहले समझ लो पॉइंट, ठीक। अगर अबेटमेंट इस प्रकार का हो रहा है, एडिंग इस प्रकार की हो रही है कि सामने वाले का कोई से नहीं है, सामने वाले का से होने का मतलब इट इज ओनली साइड, इट्स नॉट सुओ मोटू। समझ में आया? इट्स नॉट सुओ मोटू, स्वतः खुद से नहीं हो रहा है, खुद से आप डेथ कॉज नहीं कर रहे हो। अगर आप अबेटमेंट इस प्रकार का करो, सामने वाला व्यक्ति आपको, ठीक है, से नहीं है मतलब क्या, मान लो वाइफ है, कोई महिला है, ठीक है, यहां से हस्बैंड है, रिलेटिव्स है, पीछे से सारे रिलेटिव्स, हाँ वही इसीलिए एग्जांपल से समझा रहा हूं, इतनी खिचड़ी बननी नहीं चाहिए, आराम से समझो, ठीक। हाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हस्बैंड वाइफ, ठीक। अगर आप अब देखो बहुत ध्यान से समझना, हस्बैंड यहाँ पे वाइफ को, और हस्बैंड और उनके जो रिलेटिव्स हैं वाइफ को रेगुलरली ताना मारते हैं, रेगुलरली चीजें बोलते हैं, वाइफ ने सुसाइड कमिट कर ली, 306 का, ठीक। हस्बैंड और रिलेटिव्स ने मिल करके वाइफ को मान लीजिए उनकी डेथ कॉज कर दी, पॉइजन दे दिया या उन्हें छत से धक्का दे दिया, किसी भी प्रकार से उनकी डेथ कॉज कर दी, 304 बी। ध्यान से समझो, हस्बैंड और रिलेटिव्स अगर मान लो वाइफ को अबेट ही कर रहे हैं, दे आर अबेटिंग ओनली। अबेट कैसे कर रहे हैं? अबेट ऐसे कर रहे हैं, बार बार उसको बोल रहे हैं कि यार देखो तुम्हें तो कोई काम आता है नहीं, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो इस पूरे घर को, इस पूरे परिवार को, ठीक है, इस पूरे के पूरे कुल को तुम कोई वंशज भी नहीं दे पा रही, ठीक, किसी प्रकार का, ध्यान से सुनना, पहले सुन लो, वंशज भी नहीं दे पा रही, तुम इस घर में, ठीक है, हाँ कुछ पैसा वैसा भी लेकर के नहीं आई, कोई दहेज वगैरह भी नहीं लेकर के आई, XYZ चीजें बोली गई उसको, ये ताना मारा जा रहा है। ये अबेटमेंट की कौन सी कैटेगरी में आता है? हाँ, डिग्रेडिंग हर सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्रेड कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ये अबेटमेंट की कौन सी कैटेगरी में आता है? दिस इज इन व्हिच कैटेगरी ऑफ अबेटमेंट? बताएं जरा। प्रोवोकेशन है, इंस्टिगेशन, यस दिस इज, हाँ क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, अच्छा आइडिया, रुक जाओ, दिस इज इंस्टिगेशन। अच्छा अब इंस्टिगेशन में ही बात में ये भी बोला गया है तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है, फालतू का बोझ हो तुम, हमारे ऊपर भी हो, पहले तुम्हारे माँ बाप पे बोझ थी, अब देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है, दीज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स। ये मैं इसलिए भी सिग्निफाई कर देता हूँ क्योंकि आजकल की जनता क्या ना ऑफेंड बहुत जल्दी होती है, तो इसलिए डिस्क्लेमर देना जरूरी है, भाई सब ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कैरेक्टर बोल रहा है, ध्यान से सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पता चला तुमने ही बोल दिया कि देखो इनकी शादी नहीं हुई है, ना अभी से रंग दिखाना शुरू कर दिया, भाभी ना बताओ, कार्ड से ना बताओ इस लड़के का, तुम ऐसा कर दोगे ना,
मेरा जीवन तबाह हो जाएगा, मत करना। ठीक, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, डिस्क्लेमर देना जरूरी है। हाँ, वो बेचारी कार्ड डिजाइन कर रही है, ठीक है तो मेरा शोक संदेश मत करा देना, मजाक है, काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। एग्जैक्टली, हाँ, तो उसी हिसाब से सुनो, वेडिंग कैंसिल हो जाएगी, बात सुन लो। तो जिन लोगों को नहीं पता कि वेडिंग कार्ड की बात से, तुम लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हो, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे हैं, वो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें पता चल गया है, छोड़ दो जाना। ठीक, ये सब इंस्टिगेशन की स्टेजेस है, दीज आर ऑल स्टेजेस ऑफ इंस्टिगेशन। अब मान लो कि अगर इंस्टिगेशन में ये बोला जा रहा है कि तुम बोझ हो, अपने घर वालों पे थी, उन्होंने हम पे डाल दिया, अपनी जिम्मेदारी हम पे लाद दी, वगैरह वगैरह सारे ताने, ये काम करो ना यार, तुम जहर लो, जहर खाओ, मर जाओ, या तो खुद मर जाओ या हम मार। ठीक, जहर लो, जहर खाओ, निकलो, साइनाइड लो, खाओ, मुक्ति पाओ, तुम भी, हमें भी छोड़ो। ठीक, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से समझना, अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्टेट में है, ऐसी मेंटल स्टेट में है जहां पे उसे सही गलत समझ में नहीं आ रही, या तो तुम साइनाइड खा लो वरना हम गोली मार देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, या तो तुम साइनाइड खा लो, तुम पॉइजन खा लो, या वी विल शूट यू। रेगुलरली सामने वाले व्यक्ति पे चढ़ के बैठना, उसको बोलना कि हैव दिस थिंग, ईट इट एंड डाई। ठीक, ताने और वो सारी चीजें चली रही हैं, आप इंस्टिगेट भी कर रहे हो। इंस्टिगेशन के अलावा एक और चीज आपने कर दी, अबेटमेंट की। व्हाट इज इट? इंस्टिगेशन के अलावा आपने अबेटमेंट की एक चीज और कर दी, एड भी कर दिया। एड भी कर दिया। जहां आपने एड कर दिया, सामने वाला, अब मुझे ये बताओ, पहला सवाल, क्या सामने वाला अब इस मेंटल कंडीशन में है कि वो यहाँ पे डिसाइड कर सके कि उसे सुसाइड करना है कि नहीं करना है, जीना है कि मरना है, रहना है कि जाना है? वो डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक, नहीं कर सकता। अगर ये स्थिति, आप सामने वाले को अगर कोई चॉइस ही नहीं छोड़ रहे हो, परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, फोन कॉल्स उनके काट दिए जा रहे हैं, वो भागने की कोशिश कर रही है, उसे घर में ही बंद करके रखा जा रहा है, तो अब इन सारी चीजों में इफ शी हैज गॉट नो चॉइस ऑफ हर ओन, फिजिकल तो आप मारपीट कर ही रहे हो, मेंटल क्रूएल्टी आप कर ही रहे हो, इंस्टिगेशन ऑफ सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आप कर ही रहे हो, एडिंग भी आप कर दे रहे हो। ऐसी स्थिति में अब ध्यान से बताना, क्योंकि ये कोर्ट के सामने मामला आएगा, ठीक है, ध्यान से बताना, इसके बाद अगर वाइफ ने खुद वो साइनाइड की गोली खा लिया, वो पॉइजन खा लिया, या शी जस्ट लाइक हैंड हरसेल्फ, ये 306 का मामला है या 304 बी का मामला है? 302 मत बोलना, 302 तो तुम जसविंदर से लगाओ। ये 306 का मामला है या 304 बी का मामला है? दिस इज अ मैटर रिलेटिंग टू 304 बी। तुम्हारे सामने आएगा, तुम 304 बी ही लगाओगे यहाँ पे, क्योंकि डाउरी का भी एंगल यहाँ पे है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इट। और ऑर्डिनरी सेंस में अगर ऐसा ये पूरा मामला चल रहा है, 302 लगाओगे आप, 302 लगाओगे, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इट। ठीक, अब क्लैरिटी समझ में आई, कब 306 कब 304 बी बन जाएगा? अब क्लियर हो गया पूरी पिक्चर, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया? ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे आता है, दिस कम्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल में नहीं लिखा हुआ है। ठीक, समीक्षा एक बार रिपोज कर देना, पीछे डाउट ऊपर निकल गया। ठीक, ये फंडा है, छोटे छोटे पॉइंट्स के बेसिस पे, छोटे छोटे सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे ये चीज ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस विद हेलो, मैं ऑडियो। हाँ, यस विद बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया। सर, इसी एग्जांपल पे जो आपने दिया, अगर ये सिर्फ इंस्टिगेशन की स्टेज तक रहता तो हम 306 लगाते। एब्सोल्युटली, कि एडिंग के आते ही हमने 304 बी पे उसको एडिंग एक ऐसा एलिमेंट आया जहां पे हमने सामने वाले व्यक्ति के सामने एक बंदूक रख दी, which is kept a gun right in front of that person, and we said either you shoot yourself or I'll shoot you. यस सर। अब वो एडिंग ही कह सकते हो एक तरीके की, वन वे और द अदर एडिंग ही है। यस समझ सर। आया? यस सर। ऐसा है, तो अगर आप एड का एलिमेंट डाल रहे हो या इंस्टिगेशन से बढ़ के भी आप कुछ ऐसा ऐड कर दे रहे हो which is not merely instigation, यस सर। कोई भी ओवर टैटू किसी भी टाइप का, अगर वो आप कर दोगे ना तो 306 से तुरंत कोर्ट 304 बी लगाए, ये पॉइंट। यस सर। सिर्फ अगर वो मतलब इन सेंस में सिर्फ अगर उसे सुनाया जा रहा है, ताने लिए जा रहे हैं, तो वो 306 में ही आएगा। बट अगर ऐसा कोई एक्ट कर दिया है जिससे वो मतलब सर मेंटल अपनी चॉइस में नहीं है या उसके पास ऑप्शन नहीं, ऑप्शन 304, हाँ, तब 304 क्योंकि वो कॉजिंग ऑफ डेथ होगा, एलिमेंट वही है। यस सर। यहाँ कोई व्यक्ति खुद को मार ले रहा है, ये सब है, जहां आप उसके पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ रहे हो, आप ही कुछ भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो कि उसकी डेथ हो रही है। You are the cause of death. If you are the cause of death or your act is the cause of death, 304 बी में है, not merely instigation. यस सर। नाउ क्लियर। यस, थैंक यू सर। यस सर, क्लियर। ओके, ठीक है। समीक्षा का कुछ डाउट था? 302 मजिस्ट्रेट, हाँ मजिस्ट्रेट ही लगाएगा, मजिस्ट्रेट नहीं होता बेटा सेशन जज जाएगा। एग्जैक्टली सुना, दैट्स द पॉइंट। अगर मैरिज को 7 साल से ज्यादा हो जाए तब डाउरी डेथ हुई, फिर किस में जाएगा? डायरेक्ट 302 चला जाता है, डायरेक्टली 302 जाता है, क्योंकि उसके लिए रखा हमने 304 बी 7 साल वाले पॉइंट। फिर अगर डेथ क्रॉस हुई 302, क्योंकि देखो देयर इज नो रूल ऑफ थंब, इसको समझिएगा कि डाउरी सिर्फ 1 साल तक मांगी जाएगी या डाउरी सिर्फ 2 साल तक मांगी। डाउरी ऐसी चीज होती है कि जनरली शादी के पास मांगी जाती है, फैक्ट यही है।
क्योंकि अगर शादी के आसपास तक डाउरी का सेटलमेंट वगैरह हो जाता है तो ये मैरिजेस सस्टेन कर जाती है, फैक्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक। अगर डाउरी नहीं फुलफिल होती है तो मोस्टली द कपल दे जस्ट पार्ट वेज, ठीक। ये वाला पॉइंट है। डाउरी के साथ इन्होंने केविएट बस ये ऐड कर दिया है कि विद इन 7 इयर्स अगर ये सब हो रहा हो तो डाउरी डेथ मानेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो 302 तो एनी गिवन डे ओपन है। समीक्षा समझ में आ गया होगा, ठीक। 302 तो ओपन है, हमारे फंस गए ना 304 बी। देखो हम फिर उसी पॉइंट घूम करके स्क्वायर वन पे आएंगे, ठीक। दैट इज 304 बी इज अ लेजिस्लेटिव, व्हाट इज इट, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है, ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। 304 बी इज अ लेजिस्लेटिव एरर, गड़बड़ है, खराबी है 304 बी, ठीक। यस, कुछ भी लग सकता है, 498 ए ही लग सकता है भाई, 7 साल 10 साल 15 साल के बाद 498 ए लग सकता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। डाउरी डेथ के साथ गड़बड़, सून बिफोर हर डेथ के साथ गड़बड़ है, क्योंकि रिलेटिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। सून बिफोर हर डेथ कभी भी हो सकता है, कम ज्यादा, ठीक। ये पॉइंट है। और जब बात करेंगे 7 साल की तो भाई 7 साल सिर्फ एक केविएट आपने अटैच कर दिया, केविएट के चक्कर में वो 302 में नहीं आ रहा, 304 बी में आ रहा है, सेपरेट ऑफेंस, ठीक है। ओके, मैंने अपनी सोसाइटी में आफ्टर 12 इयर्स मैरिज के बाद डाउरी लग रहा है, समझ नहीं आया बट सुन के दुख हुआ मोहित। 302 बेटा सीधे अंकिता 302, डिमांड ऑफ डाउरी 10 साल में हुई है, डेथ हो गई 302 सीधा, डिमांड ऑफ डाउरी डेथ नहीं हुई 498 एनी गिवन डे, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक। नो बोले नो सर व्हाट आई मेंट सेक्शन 302 इन दिस केस विल बी एप्लीकेबल नेचुरली और थ्रू डिस्क्रिशन इन द मोस्ट केसेस। जहां 304 बी का मामला कनेक्टिविटी में आएगा ना ऊपर, 302 डिस्क्रिशन बेसिस पे चला जाएगा, दैट इज जसविंदर सैनी फॉर, ठीक। यही रूल है, समझ में आया ऊपर, यही रूल है कि जसविंदर सैनी पर लगा करके वो चीज वैसे चली जाएगी। ऊपर समझ में आया तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ओके। चलो सौम्या का क्या डाउट रह गया यार, सौम्या एक बार रीपोस्ट कर दो। सौम्या ने क्या डाउट पूछा था, A hits his wife, B faints, A thinks B to be dead, hands B as to show suicide। सौम्या पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं करी है क्या? सर भले केवल हस्बैंड अवेट करे बट लायबल तो दोनों ही होंगे ना, हस्बैंड एंड रिलेटिव्स इन 304 बी। नहीं, अगर रिलेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट है तो ही रिलेटिव्स लायबल होते हैं बेटा, अदरवाइज रिलेटिव्स को मिश्ती अपन लोग लायबल नहीं करते, ध्यान रखना। कम इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इन्होंने एक्ट कॉज नहीं किया हो सकता है, सिर्फ अवेट किया होगा, थोड़ी बहुत हेल्प की होगी, still they can be held liable for 304B। हाँ, जो प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है उसको पनिशमेंट ज्यादा मिल जाएगी, एक्सेसरी जॉइन जो साइड में सिर्फ खड़े हुए हैं हेल्प कर रहे हैं उनको पनिशमेंट कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी सबको। लेकिन अगर इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ हस्बैंड ही इन्वॉल्व है तो एंड नहीं चलता, हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स नहीं चलता, इट इज हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स और बोथ, ये इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डाउट दिख नहीं रहा बेटे। हाँ, श्रीनारायण केस ऑल्सो सर, अगर डाउरी के रिलेशन में ही इंस्टिगेशन की है सुसाइड के लिए तब मैटर 304 बी में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं तो वो 306 में जाएगा और 498 ए में जाएगा, यही अपन ने समझा है। 306 498 ए इसके चार्जेस है। फर्स्ट क्लास बढ़िया, कोई बात नहीं। सो पुरानी क्लासेस में मैंने ये कवर किया हुआ है, सो वहां से ये कवर हो जाएगा। श्रीनारायण केस और पलानी गोल्डन केस, ये दोनों केस है। आर वर्सेस चेशायर का केस भी पढ़ोगे, इंग्लिश केस है, उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी बेटा। हाँ, 299 300 से ज्यादा डिस्कशन तो इसमें हो गया, सही बात है। अरे अरे वो बेटा देखो, इसको समझो, सुने ना, 498 ए सेक्शन 498 ए अरविंद कुमार लीगल टेररिज्म बोलते हैं इसको। 304 बी भाई देखो ग्रेव मामला है, लेकिन 304 बी मामला ऐसा किसी की मृत्यु हुई है, पूरी फैमिली लपेटे में आती है, हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, सही हो गलत हो कुछ भी हो, सब लपेटे में आते हैं, ठीक। ये फैक्ट है। तो सही गलत अपन उस पर अभी नहीं जा रहे, क्योंकि सही गलत पे जाओगे ना तो वो प्रैक्टिकल सेंस में बात जाएगी, फिर वही जो भी मोहित ने कहा ना, ये टॉपिक फिर डिबेटेबल हो जाएगा। अच्छी खासी मतलब देयर इज नो एंड टू दिस डिस्कशन, देयर आर वेरियस वर्टिकल्स टू इट, बट छोड़ो अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। 304 बी समझ में आया, जल्दी से बता दो प्लीज, भगवान के लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती, मैं मोदी जी से विनती करता हूं, मैं अमित शाह जी से विनती करता हूं, मुझे माफ कर दे प्लीज। हो गया, हो गया, बस आप पानी पी लो, धन्यवाद, ठीक। चलो हाँ, लेजिस्लेटिव एरर हटा दो, थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू माय पेशेंस। एक बच्चा मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, मोस्टली इट इज रिद्धि ओनली, दे आर लाइक कि सर, और आर्यन है टीपीएम में, दे आर लाइक कि सर पेशेंस बहुत है सर, क्या खा रहे हो, कहां से आ रहा है, शादी की तैयारियां हैं, बस क्या बताएं। चलिए 305 की बात करते हैं, बी ही निकल रहा है मुंह से ससुरा, ठीक। 305 मैं नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, डेथ पेनाल्टी, ठीक, डेथ पेनाल्टी है, दैट्स इट, ओके बेटे। 305 पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है, 305 पढ़ लेंगे। 306 भी पढ़ने की जरूरत है नहीं, 306 इज लाइक यू डोंट actually need to read 306 because 306 is a section जो कि already आप अवेटमेंट के साथ पढ़ चुके हो, so I don't need to repeat it like an idiot for you। 306 आप अवेटमेंट के साथ पढ़ चुके हो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है, उसने बच्चे को कहा, एक बच्चा था, ठीक है, क्या नाम था उसका, नीतीश, नीतीश नाम का बच्चा था, हाँ वो बताऊंगा मुझे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक बच्चा कालू, देखो ब्लडी रेसिस्ट है,
फालतू बोलेंगे इसको हम लोग। ओ कृति, नहीं यार, वो बेचारी अच्छे इंटेंशन से बोल रही है, फालतू मजे ले रहा है उसको। अच्छे बच्चों के मजे लेने में मजा भी आता है, ठीक है। अच्छा सा क्यूट नेम, थैंक यू सो मच। ठीक, सुनो ध्यान से। एक प्रिंसिपल है, एक लड़का है नीतीश। तो नीतीश और एक लड़का है शुभम, शुभम अपना ही नाम ढंग से ना ले पा रहे, कैसे पढ़ाओगे बात है। नीतीश और शुभम दो लड़के हैं, इनके बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात पे हुआ, दोनों पढ़ते थे सेंट थॉमस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अयोध्या नगर भोपाल में। दोनों के बीच में झगड़ा इस बात पे हो गया कि नीतीश और शुभम असेंबली से पहले जो 15-20 मिनट का एक टाइम पीरियड होता है जब बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं मुंह उठा करके, ठीक है, उस टाइम पे ये दोनों लोग ट्रम्प कार्ड खेल रहे थे। ट्रम्प कार्ड आते थे WWE वाले, ठीक है। तो नीतीश और शुभम ट्रम्प कार्ड्स खेल रहे थे। ट्रम्प कार्ड्स स्कूल में ले जाना मना था, जाहिर सी बात है। और ट्रम्प कार्ड खेलते हुए कुछ किसी बात पे इन लोगों का झगड़ा हो गया। एक ने कहा कि भैया अंडरटेकर जो है उसका वेट ज्यादा है, दूसरे ने कहा मार्क हेनरी है उसका वेट ज्यादा है। दोनों के बीच में झगड़े हो गए, ठीक, झगड़े हो गए। प्रिंसिपल साहब उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे। एक दूसरा इंस्टेंस भी है, एक लड़का था शुभम उपाध्याय नाम का, उसको चलते चलते एट रैंडम माता चढ़ती थी। तो वो क्या करता था, ऐसे नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, फिर वो अचानक से बोलिंग एक्शन करता है, ठीक है। नॉर्मल चल के जा रहा है, फिर वसीम अकरम बनना है इसको, अजीत आगरकर का एक्शन कर रहा है, ठीक। यस, दो इंस्टेंसेस हुए जहां पे नीतीश और शुभम, और एक बार अकेले शुभम उपाध्याय, इन लोगों को पकड़ा गया प्रिंसिपल साहब के द्वारा। और असेंबली में इनको हैंग कर दिया। सॉरी, पापा का फोन, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। अरे पनिशमेंट दे दी, हैंग नहीं किया है, पनिशमेंट दे दी, पूरी असेंबली के सामने पनिशमेंट दे दी। तो ये वाला इंस्टेंस पहले हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ, ये वाला इंस्टेंस सेकंड टाइम हुआ। तो शुभम उपाध्याय जो है वो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, जैसे तैसे करके खड़े हो गए, पनिशमेंट ले ली उन्होंने, और स्कूल के सामने नाक कटवा ली अपनी 8th क्लास में, ठीक है, घड़ी बेच दी। शुभम उपाध्याय वाज लाइक ओके ठीक है, एक ही दिन है, चलो अंकल तुमने जो कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, कुर्ता पैजामा नहीं वैसे वो क्रिश्चियन वाले थे तो चोगा पहनते थे, तो ये अंकल तो एक दिन के बाद छूट गए। फिर एक बार जब यही लड़ाई हुई, लड़ाई में दोनों लोग फंसे तो फिर प्रिंसिपल साहब ने दोनों को पनिशमेंट दी। अब जब दोनों को पनिशमेंट दी तो शुभम उपाध्याय इज यूज्ड टू इट। शुभम उपाध्याय इज लाइक हाँ ठीक है, खड़े हो जाएंगे, पूरे दिन खड़े रहना, 8 पीरियड हो जाएंगे, कोई दिक्कत। जो एक लड़का है उनके साथ नीतीश से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई उनसे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके साथ ऐसा हो गया, ठीक है। वो कुछ गलत कदम उठा बैठे जीवन में। सी हाउ द एंटायर जोक टर्न्ड डार्क ना, है ना। देखो साहब के मैं क्या, कहां से कहां आ गए, क्या हम हंस रहे थे अंकल, आपने जोक डाल कर दिया। नहीं यार, मेरा दुश्मन था, उसका एग्जांपल देने में मजा, ठीक है। जिंदा है वो, बढ़िया डबलिन में बढ़िया एंजॉय कर रहा है, आयरलैंड में, ठीक है। मान लो कि नीतीश को गुस्सा आ गया होता, मान लो नीतीश ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया होता, तो क्या 306 की लायबिलिटी बनती? सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या 306 की लायबिलिटी बनती, ये क्वेश्चन। नो, नहीं बनती, बस खत्म। तुम्हें लगा सब बढ़िया चल रहा है, पानी चल रहा, मजा ही आएगा, अचानक से नीतीश ने गलत कदम उठा लिया। 306 नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि दिस इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। दिस इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन, 306 is not applicable. That is your section 306. So no need to get into the details of it. 306 is relatable with section 107. ठीक है, ये चीज है, ओके। आप तो सोचे कि हम 307 का एग्जांपल दे रहे हैं, नहीं 307 का भी आएगी नहीं, ठीक। फेयर इनफ, चलिए एक बस लाइन लिख लीजिए फॉर सेक्शन नंबर 306। फॉर सेक्शन नंबर 306 हेडिंग बना ले, आई मीन एक केस लिख लें, जब पहले हेडिंग ही बना लो, डिफरेंस बिटवीन section 304B and section 306. Difference between 304B and section 306. There is a case by the name of Sameer Samanta versus State of West Bengal. Sameer Samanta versus State of West Bengal, 1993. लिख लें इसमें, cruelty or harassment in relation to demand of dowry, cruelty or harassment in relation to a demand of dowry which drives the wife to commit suicide attracts the offense of abetment of suicide. Drives the wife मतलब pushing her, ठीक है, drives the wife to commit suicide, attracts
the offense of abetment of suicide under section 306. Attracts the offense of abetment of suicide under section 306. Guys, hold on a second. Hold on a second. Guys, just 1 minute. I'm coming back in a minute. 1 minute. शादी की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए थोड़ा अगर बीच बीच में ऐसा होता रहना प्लीज माफ कर देना, क्योंकि जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा जनरली नहीं होता, बट अभी बैक टू बैक थोड़ा ठीक है, रियली सॉरी, जस्ट 1 मिनट, कमिंग बैक। सॉरी जी, चलिए फेयर इनफ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीन पे 1 मिनट लिख दिया करो, ये 1 मिनट लिखा था मैंने, बस थोड़ा कोने में हो गया था, सॉरी भाभी जी, सॉरी, साइड में हो गया था। ठीक, चलो अब आ जाते हैं मोहित वाले पॉइंट पे, दैट वाज यूथनेशिया। ठीक है ना, देखिए यूथनेशिया जो है, यूथनेशिया के फंडा को समझते हैं एक बार। ठीक है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में इसको स्टडी किया जा सकता है, अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड में भी किया जा सकता है, बट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड शुड बी द राइट पॉइंट टू डिस्कस यूथनेशिया। नाउ देखिएगा, एक ऑर्डिनरी एक केस आया था, पी रतिनाम्स केस। पी रतिनाम्स केस, अब पी रतिनाम्स केस जो था उसमें ये चीज डिसाइड की गई कि भाई देखो, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। ठीक है, राइट टू लाइफ है, उसमें राइट टू डाई भी इंक्लूडेड। अच्छा, अब इसके बाद एक केस आया ज्ञान कौर का। ज्ञान कौर केस में ये पी रतिनाम वाली चीज को ओवररूल किया गया, बोला गया कि नहीं भाई, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं होता है। अब ध्यान से समझिए, यूथनेशिया से ये कैसे कनेक्टेड है। यूथनेशिया का मतलब होता है मर्सी डेथ। यूथनेशिया मींस मर्सी डेथ। अब एक और चीज है, हाँ, इसी को हिंदी में बोलते हैं इच्छा मृत्यु। दिस इज कॉल्ड एज इच्छा मृत्यु। इसके अलावा एक और काइंड ऑफ डेथ होती है जो सिमिलर नेचर की है, दैट इज असिस्टेड सुसाइड। असिस्टेड सुसाइड, असिस्टेड सुसाइड का मतलब होता है एडिंग। मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, अल्कोहलिक है, बहुत पेन में है, उसे छुटकारा चाहिए, आप उसे नहीं मार सकते, आप उसके टेबल के बगल में फॉर एग्जांपल कोई पॉइजन या साइनाइड वगैरह कोई दवा कोई ड्रग रख के चले गए, जिसको अगर व्यक्ति कंज्यूम कर ले तो उसकी मृत्यु हो जाए। दिस इज असिस्टेड सुसाइड। सो यूथनेशिया इज अ डिफरेंट थिंग, असिस्टेड सुसाइड इज अ डिफरेंट थिंग। पहले तो ये क्लियर कर लो, आधी दुनिया को फर्क ही नहीं पता है। देयर इज अ डिफरेंस। यूथनेशिया इज अ मेडिकल प्रोसेस, यूथनेशिया इज टोटली अ मेडिकल प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड, असिस्टेड सुसाइड इज नॉट अ मेडिकल प्रोसेस, इट इज अ रेगुलर प्रोसेस ऑफ कॉजिंग या हेल्पिंग इन कमिटिंग सुसाइड। अब देखिए, दोनों ही चीजें इंडिया में अलाउड नहीं है, इंडिया में दोनों ही चीजें अलाउड नहीं है। और इसका जो प्राइमरी केस है दैट इज ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। नाउ द पॉइंट हियर इज कि ज्ञान कौर केस के बाद एक केस आया जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल माना जाता है, दैट इज द केस ऑफ अरुणा रामचंद्र शानभोग केस। तो ये जो अरुणा रामचंद्र शानभोग केस था, इस केस में हुआ ये था कि एक महिला थी, नर्स थी, उनके साथ सोडोमी कमिट की गई। ठीक, नाउ व्हाइल द सोडोमी वाज कमिटेड, ठीक, सोडोमी कमिट करते वक्त वहीं उसी हॉस्पिटल का एक कंपाउंडर था, उसने इनको स्ट्रैंगुलेट भी किया, इनके गले में चेन बांधी थी, जिसकी वजह से उनका जो विंड पाइप था वो डैमेज हुआ। ठीक, सो इट वाज द केस ऑफ रेप, सोडोमी, एंड इट वाज अ केस ऑफ ऑब्वियसली मतलब अटेम्प्टेड मर्डर, वो चला गया था। बिकॉज ऑफ दैट शी वेंट इनटू अ वेजिटेटिव स्टेट। अब वेजिटेटिव स्टेट में होने का मतलब होता है कि शी कैन नॉट रिकवर, वो रिकवर नहीं कर सकती, ब्रेन डेड नहीं हुई है, किंतु ठीक है, किंतु जीने लायक स्थिति भी उनकी नहीं है, वेजिटेटिव स्टेट है। अब परसिस्टेंटली वेजिटेटिव स्टेट में वो लगभग रही थी 37 साल तक, एक बार चेक कर लीजिएगा, 37 या 40 साल तक, मतलब शी एज्ड व्हाइल बीइंग इन दैट स्टेट। ठीक, परसिस्टेंटली वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। अब जो व्यक्ति था, ऑफेंडर था, उसको सजा हुई, वो रिहा भी हो गया, बट शी वाज लाइक दैट ओनली। टाइम एंड अगेन एनजीओज और दूसरे एक्टिविस्ट जो थे वो उनकी एक मर्सी डेथ की रिक्वेस्ट कर रहे थे, यूथनेशिया की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनको प्लीज इनके दर्द से छुटकारा पाया जाए। तो अरुणा रामचंद्र शानभोग केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया।
बट इनको पैसिव यूथेनेशिया नहीं दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। अरुणा रामचंद्र शानभोग जो थी उनको पैसिव यूथेनेशिया नहीं दिया गया था। उनकी जो डेथ हुई थी वो मतलब एज एंड परसिस्टेंटली उसी स्टेट में होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। शी वाज नॉट गिवन एनी यूथेनेशिया, बट पैसिव यूथेनेशिया अरुणा रामचंद्र शानभोग केस से अलाउ कर दिया गया। अब समस्या ये थी कि पैसिव यूथेनेशिया अलाउ करने का मतलब है राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। तो फिर इसके बाद एक केस आया, दैट वाज द केस ऑफ कॉमन कॉज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कॉज एक एनजीओ है, कॉमन कॉज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, हम 3 गाइडलाइंस पे बात करेंगे। ये आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे या जब देवाशीष सर ने पढ़ाया होगा तो डेफिनेटली डिस्कस किया है। पॉइंट ये है कि व्हेन यू लुक एट द केस ऑफ पैसिव यूथेनेशिया और द केस ऑफ कॉमन कॉज में 3 पैरामीटर्स रखे गए। पहला पैरामीटर था राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड्स राइट टू डाई। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। फर्क समझ में आया दोनों में? राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड्स राइट टू डाई, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। मतलब आप डिग्निटी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। सर ने अभी आईपीसी डिटेल में नहीं पढ़ाया, प्लस में ओनली वाईटी पर। ना बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, कॉन्स्टिट्यूशन का केस है। दिस इज नॉट प्राइमरली द केस ऑफ आईपीसी। आईपीसी में तो अपन डिस्कस कर ही रहे हैं क्योंकि अटेम्प्ट टू सुसाइड और वो 309 और 306 वो सब आ रहा है। अदरवाइज आर्टिकल 21 का केस है, ठीक है। सो देख लीजिए, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड्स राइट टू डाई बाय द कॉमन कॉज केस। By its application, right to life includes right to die with dignity. Now, what does that mean? That would mean that let's say if a person is in such a state, वो बीमार है या अगर वो ऐसा सोच सकता है कि फ्यूचर में जाकर के वो ऐसा बीमार होगा, ठीक, तो वो एक लिविंग विल बना सकता है। अपने जीते जी वो एक लिविंग विल क्रिएट कर सकता है जिसके थ्रू वो ये बोल सकता है कि अगर कल को चल के मैं ऐसी स्थिति में पहुंचा, ठीक, तो मेरे साथ ये किया जाए, या मेरी फैमिली अगर डिसीजन दे, डॉक्टर्स की सहमति हो, तो फिर मुझे इस प्रकार मेरी तकलीफ से आजाद किया जाए। दिस इज राइट टू लिविंग विल। ये सबसे बड़ा राइट दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, या सबसे बड़ा राइट दिया, ठीक है, एक किसी भी व्यक्ति को। वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एनी पर्सन, मे ही बी इन गुड हेल्थ, मे ही बी इन बैड हेल्थ, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिविंग विल। राइट टू लिविंग विल का मतलब है अगर किसी, ये जनरली आप और मैं नहीं बनाएंगे, स्वाभाविक सी चीज है। लेकिन कोई व्यक्ति है जो कि क्रॉनिक डिसीज में चल रहा है, कोई व्यक्ति है जिसका काम बहुत बहुत डेंजरस है, हजार्डस नेचर का है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो एंटिसिपेट कर रहा है कि भाई डेथ मेरी हो सकती है या मैं ऐसी स्टेट में जा सकता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति लिविंग विल बना सकता है। हाँ, टर्मिनली क्रॉनिकली इल ऐसा व्यक्ति लिविंग विल बना सकता है कि कल को चल के अगर मैं बहुत ऐसी वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाऊं तो प्लीज मेरे साथ ऐसा किया जाए। इसका प्रोसेस छोटा नहीं है। इसके लिए आपको मेडिकल काउंसिल की पहले तो कंसेंट चाहिए होती है, हॉस्पिटल की कंसेंट ऑब्वियसली चाहिए होती है, फैमिली की कंसेंट चाहिए होती है, हाई कोर्ट से कमेटी बनती है उसकी कंसेंट चाहिए होती है, देयर इज अ डीएम की कंसेंट चाहिए होती है, एंड देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस, ठीक। नोट मेकिंग बच्चे एज सच तो नहीं है, एज सच नोट मेकिंग 307 में है, थोड़ी सी नोट मेकिंग, एकदम जीरो नहीं है। तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा नोट मेकिंग नहीं, ठीक है। इफ इट इज अर्जेंट यू कैन लीव, नॉट अ प्रॉब्लम। सो लिविंग विल, अब लिविंग विल बना सकते हैं। लिविंग विल अगर आप बनाते हैं तो आपको अल्टीमेटली दे दिया जाएगा पैसिव यूथेनेशिया, ठीक। अगर आप लिविंग विल बनाते हैं, ठीक, तो आपको दे दिया जाएगा पैसिव यूथेनेशिया। ओके, बात समझ में आई? सो डायरेक्ट पैसिव यूथेनेशिया इज नॉट अलाउड, इट इज स्टिल नॉट अलाउड। लेकिन देन अगेन जो इसका इंटरप्रिटेशन है, कॉमन कॉज का जो इंटरप्रिटेशन है, वो पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर देता है कि मान लो अगर किसी व्यक्ति ने लिविंग विल नहीं भी बनाई, तो यहाँ पे सबसे बड़ी राइट क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट राइट दैट यू कैन सी इन द एंटायर केस? दैट इज राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक, नॉट अ प्रॉब्लम रिद्धि। दिस इज द बिगेस्ट राइट, दिस विल प्रिवेल ओवर एवरी अदर राइट। तो अगर कोई भी व्यक्ति खुद को ऐसी स्थिति में पाता है तो वो व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति तो नहीं बट उसके जो परिवार के सदस्य हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, जो भी उसके केयरर्स हैं, वो सभी लोग ये डिसीजन ले सकते हैं और पैसिव यूथेनेशिया दिलवा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति लिविंग विल बना के गया है तो फिर लिविंग विल के हिसाब से ट्रीटमेंट होगी। ये है द केस ऑफ कॉमन कॉज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे वर्टिकल की, दैट इज असिस्टेड सुसाइड। गुड इवनिंग आशा। असिस्टेड सुसाइड इज नॉट अलाउड, ठीक है। असिस्टेड सुसाइड इज नॉट अलाउड, नहीं अलाउड है। समझ में आया? किसी डॉक्टर को लग रहा है कि यार पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसको कोई दवा, नहीं, नॉट अलाउड, टोटली नॉट अलाउड। क्लैरिटी रखना, यूथेनेशिया पैसिव अगर लिविंग विल के साथ है वेल एंड गुड, अदरवाइज राइट टू डाई विद डिग्निटी को इन्वोक करते हुए पॉसिबल। एक्टिव यूथेनेशिया नॉट पॉसिबल, जनरली पैसिव यूथेनेशिया अगेन नॉट पॉसिबल। असिस्टेड सुसाइड नॉट पॉसिबल, ठीक। असिस्टेड सुसाइड का मतलब ये है कि आप सामने वाले को सुसाइड करवा रहे हो, आप उसको ड्रग दे रहे हो, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, आप उसको ड्रग्स दे रहे हो, ले भैया खा ले, कितना चिल्लाएगा तू, खा ले। ऐसा अगर हो रहा है, दिस इज नॉट अलाउड, आप सेफ नहीं हो, ठीक, गलत बात। गॉट द पॉइंट? ये है एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया की पूरी कहानी। मोहित एंड बाकी सभी लोग समझ में आया? इस पे छोटी सी नोट मेकिंग अभी अपन कर रहे हैं। यूथेनेशिया के दो पार्ट्स हैं, एक्टिव और पैसिव। असिस्टेड इज
असिस्टेड सुसाइड का मतलब वही सुसाइड करने में किसी की मदद करना। समझ में आ गया होगा? चलो, इसमें छोटी सी नोट मेकिंग है, रिद्धि को मैं बताना भूल गया, लेकिन आप लोग प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, या रिद्धि अगर खुद ही पूछना तो हमको बता दीजिएगा। छोटी सी नोट मेकिंग है, जस्ट राइट दिस डाउन, लिख लें। सेक्शन 306, सेक्शन 306 prescribes punishment for abatement of suicide. हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ है। सेक्शन 306 prescribes punishment for abatement of suicide, while section 309 punishes attempt to commit suicide. अब तो पनिश नहीं करता वो। while section 309 punishes attempt to commit suicide, ये ज्ञान कौर में बोला गया था जो चीज अपन लिख रहे हैं। फुल स्टॉप। अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, abatement of attempt to commit suicide is outside the purview of section 306, is outside the purview of section 306, and it is punishable only under section 309, and it is punishable only under section 309 read with section 307, read with section 307। अब आपने किसी को अपडेट किया सुसाइड करने के लिए, उसने सुसाइड नहीं किया, ठीक, तो उसकी पनिशमेंट 306 की जगह 309 में कवर होती है, 20 का रास्ता, ठीक। नेक्स्ट लिख लें, स्टार बना करके पॉइंट लिखिएगा, थोड़ा सा लिखना है इसमें। असिस्टेड सुसाइड एंड असिस्टेड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, assisted suicide and assisted attempt to commit suicide are made punishable in the interest of the society, are made punishable in the interest of society. The Constitution Bench in the case of Gyan Kaur versus State of Punjab, the Constitution Bench in the case of Gyan Kaur versus State of Punjab held that both euthanasia and assisted suicide are not lawful. Both euthanasia and assisted suicide are not lawful in India, and overruled the case of P. Ratinam versus Union of India, and overruled the case of P. Ratinam versus Union of India. It was held that, ये ज्ञान कौर का ही चल रहा है, it was held that Article 21 does not include right to die. Article 21 does not include right to die. Full stop. But in the case of, next paragraph, but in the case of Aruna Ramchandra Shanbhog, SC held that passive euthanasia can be allowed under exceptional circumstances, under the strict monitoring of the court. Next line में लिखेगा, further in the case of common cause and others versus Union of India, the court held that right to life includes right to die with dignity. Right to life includes right to die with dignity under Article 21. It also discussed the validity of passive euthanasia, and signified the
importance of and signified the importance of living will. Importance of living will. अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट हो तो मैं फिर भी बता देता हूँ. यूथेनेशिया दो टाइप का होता है. शॉर्ट में बता रहा हूँ. यूथेनेशिया दो टाइप का होता है. एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव. एक्टिव का मतलब होता है टू कॉज डेथ, टू किल. सामने वाले की तबीयत खराब है, ठीक, उसको जहर दे दो, मर जाए. तबीयत खराब है वैसे ही मरेगा, जहर दे दो जल्दी मरेगा. एक्टिव यूथेनेशिया. पैसिव यूथेनेशिया मतलब टू लेट डाई, मरने देना. दवाइयां बंद कर देना, सपोर्ट सिस्टम हटा देना. कोई और ऐसी चीज है जिससे वो व्यक्ति जीवित है, ठीक, वो सपोर्ट सिस्टम, वो दवाइयां, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो मशीन्स हटा देना. पैसिव यूथेनेशिया. आई होप डिफरेंस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर. एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया. एक्टिव में आप उसको ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे हो या फिर किसी तरीके का शॉक दे रहे हो, किसी तरीके का कोई पॉइजन दे रहे हो, दैट्स एक्टिव यूथेनेशिया. यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे आप उसका सपोर्ट सिस्टम हटा रहे हो बस. टू किल, टू लेट डाई, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. ना एक्टिव नहीं बेटा, पैसिव अलाउ किया गया, एक्टिव अलाउड नहीं. ठीक. लिविंग विल पैसिव की बात करती है. लिविंग विल अगर ऐसा बोलेगी कि भैया अगर मुझे मैं खराब हालात में पहुंच जाऊं तो मेरे सर में गोली मार देना यहाँ पे, ठीक, तो लिविंग विल एप्लीकेबल नहीं होगी. आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो, मैं वेजिटेटिव स्टेट हूं तो यहाँ बीच में तिलक लगाइए मेरे, ठीक, नहीं हो सकता. एग्जैक्टली, क्योंकि तब डिग्निटी नहीं रहेगी. आपको अगर ड्रग्स देके मारा जा रहा है, शॉक देके मारा जा रहा है, पॉइजन देके मारा जा रहा है, राइट टू डाई हो जाएगा. राइट टू डाई विद डिग्निटी नहीं होगा. एक्टिवली अगर यूथेनेशिया दिया जाएगा तो डिग्निटी खत्म हो जाएगी. यही रीजन. एब्सोल्युटली करेक्ट रति. ठीक. चलो इसके बाद आता है सेक्शन 307, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर. एक बार 307 को रीड कर लीजिए एंड जस्ट रिवाइज. आज की क्लास में आपने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर फटाफट से. रीड इट. 307 बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, छोटा सा सेक्शन है. इसको एक बार रीड करें प्लीज एंड रिवाइज इट क्विकली. कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, क्या बोलते हो? थोड़ा सा रीड कर लो, पढ़ लो अभी तक जो पढ़ा है. नेक्स्ट सब्जेक्ट आफ्टर आईपीसी. अभी तक मैंने दो सब्जेक्ट्स प्लान किए हैं, एक फैमिली लॉ है और दूसरा सीआरपीसी, क्योंकि द साइकिल वुड बी रिपीटेड. ठीक है, दो सब्जेक्ट्स हैं जो प्लान है अभी. आईपीसीआर मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा. अगर इस मंथ तक कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक तक शुरू हो जाएगा. ठीक है, फैमिली लॉ सीआरपीसी. हाँ वो देख लेंगे. फैमिली लॉ व्हाटएवर. क्या नहीं पढ़ा ढंग से? सीआरपीसी नहीं पढ़ा ढंग से कि फैमिली लॉ नहीं पढ़ा ढंग से? जेडब्ल्यू कब या जेडब्ल्यू तब स्टार्ट करेंगे जब ये चीज थोड़ी कवर अप हो जाए. उसके बाद जजमेंट राइटिंग कैन बी स्टार्टेड. उसके बाद जजमेंट राइटिंग कैन बी स्टार्टेड. इनफैक्ट अगर पॉसिबल होगा ना तो जेडब्ल्यू की कशिश आइडिया अच्छा है. जेडब्ल्यू की ना अब लोग अल्टरनेट में क्लासेस शुरू कर लें. दैट्स अ गुड आइडिया. दैट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया. क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं अपना पूरा स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूं आपको. यू विल अंडरस्टैंड इट जस्ट सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज. क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सारथी 1 से जुड़े हुए हैं, बहुत से रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, तो उनके लिए सीआरपीसी का कोई रोल नहीं है. अगर उनके लिए मान लीजिए इसका भी रोल नहीं है फैमिली लॉ का, तो मैं बता देता हूं जस्ट इन केस वाली बात है. देखो, माय टीपीए वुड एंड बाय लाइक 10th के आसपास, 10th 12th के आसपास ये खत्म हो जाएगा. क्योंकि टीपीए में ज्यादा कुछ है नहीं. हम लोग मॉर्गेज को रैप अप कर रहे हैं, नोट मेकिंग होगी नहीं, लीज एंड एवरीथिंग इट्स वेरी इजी. ठीक. यस, टीपीए है, साथ साथ एमपीएडीपीओ चल रहा है. एमपीएडीपीओ चल रहा है. एमपीएडीपीओ भी मोस्ट प्रोबेबली मंथ एंड तक कंप्लीट हो जाएगा. मंथ एंड तक कंप्लीट हो जाएगा. ओके. दूसरी चीज, इसका टाइम स्लॉट भी अवेलेबल रहेगा, इसका टाइम स्लॉट भी अवेलेबल रहेगा. यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि वी कैन स्टार्ट विद टीपीए. जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हम लोग फैमिली लॉ शुरू कर सकते हैं. ध्यान से सुनना पहले. एमपीएडीपीओ फिनिश होगा, यहाँ पे जजमेंट राइटिंग शुरू की जा सकती है. ठीक. या फिर थोड़ा स्विच हो सकता है, बट यू विल अंडरस्टैंड. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. और अगर इसमें स्विच नहीं है तो क्या साथी जो है, साथी में आईपीसी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा बाय वही फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक. इस टाइम पे अपन सीआरपीसी रखेंगे. ठीक है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. मतलब शाम के टाइम सीआरपीसी, मॉर्निंग के टाइम पे अपना फैमिली लॉ एंड जजमेंट राइटिंग. ठीक है, सब कुछ अकोमोडेट कर लूंगा ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना. अब वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए बस रेडी रहना आप लोग. उसके लिए भाई उतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में चलना मेरे से. ठीक. देखो, मैं ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप लोगों का कोई नुकसान कभी नहीं होने दूंगा. दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी. ठीक. यू विल नेवर एवर 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 एट एनी पॉइंट बी लाइक एट एनी लॉस. ठीक. दैट्स कंप्लीटली होल सोल मेरी रिस्पांसिबिलिटी. ठीक है यार. एनआई देखो, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली बेटे, जेडब्ल्यू में हिंदी में नहीं करवाऊंगा, लेकिन जेडब्ल्यू के नोट्स आप लोगों को पूरे मिलेंगे और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे. ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे. सो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पूरी चीजें चलेंगी. ठीक. ओके. चलो सर, फिर हम आपकी तीनों क्लासेस करते हैं. यार देखो, टाइम वेस्ट मत करना, जो पढ़ा हुआ है उसको आगे ही देखना. यूपीपीसीएस ने न्यूज एंड दिमाग खराब कर दिया सर, जाने तो उसके बारे में सोचो मत. जितना सोचोगे उतनी बुद्धि भ्रष्ट होगी. सोचो मत.
अभी है ना ये बोल रहे हैं कि सिलेबस चेंज कर दे रहे हैं, पाठ्यक्रम चेंज कर दे रहे हैं, प्री बदल दिया, मेंस बदल दिया, इनको बदलने दो। जब वैकेंसी डालेंगे तब देखेंगे, मत सोचो। तुम्हारा जैसा प्रिपरेशन चल रहा है, तुम्हारे पास जितने सब्जेक्ट सिलेबस के हिसाब से ऑलरेडी है, उसको कवर करने पे फोकस करो। अगर ये लोग मान लो कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस लॉन्च करते हैं, अगर ये मेंटेनेंस या ओल्ड एज वाला उससे रिलेटेड कुछ लॉन्च कर मतलब कुछ ऐड ऑन करते हैं, डुएबल है, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। मत सोचो उसके बारे में, सोच सोच के अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लोगे, कोई जरूरत नहीं है। रेवेन्यू एक्ट पुराना छोड़ दो, छोड़ दो, वो सब कवर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ these things will be covered. You should be worried about कि जब इसकी वैकेंसी या इसकी डेट आ जाए तब तक तुम्हारा कुछ पिछला बैकलॉग ना रहे, क्योंकि अगर पिछला बैकलॉग रखोगे तो तब ये चीजें कवर करने में समस्या आएगी। आई एम टेकिंग योर प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ सीआरपीसी, कंटिन्यू रखो। हाँ कंटिन्यू रखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से देखो। सर इत्तला कर दीजिएगा यार, इत्तला होता है कि इत्तला होता है, पता नहीं, थोड़ी बुद्धि थोड़ी कम है। 26 जनवरी से है सर आपके साथ, पूरा ट्रस्ट है। थैंक यू सो वेरी मच कशिश। मॉर्निंग आवर्स दिव्या, समझ रहा हूँ ना, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बहुत से लोग की है। एनआई देख बेटा, एनआई और माइनर सब्जेक्ट्स मेरे नहीं है, आई डोंट डील विद माइनर सब्जेक्ट्स, वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं मेक श्योर जरूर करूंगा कि आप लोगों की वो सारी चीजें कवर हो, क्योंकि वो कवर होना मेरी रिस्पांसिबिलिटी। मेरा मतलब मैं माइनर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच माइनर सब्जेक्ट्स, आई कैन टीच बट आई डोंट टीच, ठीक, बट वो आपके कवर होंगे और अच्छे से कवर होंगे, ये मेरी पूरी रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। इफ आई एम लीडिंग अ बैच दैट इज कंप्लीटली माय रिस्पांसिबिलिटी, नॉट फ्रॉम टुडे, सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक, कस्टम है ये, मेरी पूरी रिस्पांसिबिलिटी है। वो कैसे होगा, कितने अच्छे स्तर पे होगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। आज में भी बहुत से लॉस हमारे आप हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। सिर्फ जो ऑलरेडी जो चीजें अपन पढ़ चुके हैं ना, उसमें कोई खराबी मत रखो, आगे के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। हाँ अंकिता बता तो दिया, हाँ हट गया, लेकिन वो मैसेज में आपको फोटो में छपा हुआ है, ठीक है। बाय 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 गुलिस्ता, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ इतना होता है। एक्सटर्नल करा था, एक्सटेंड करा था, मेरे पास ऑफर नहीं आ रहा है, मेरा लेन को एंड हो रहा है सब्सक्रिप्शन। मिस्टी आई हैव टू चेक, प्लीज मेरी एक बार टीम से कनेक्ट कर लेना इस पे, जस्ट कनेक्ट विद माय टीम। अच्छा मेरा जो टीम का नंबर है 8085430404, ठीक है। ये नंबर अभी शायद 2-3 दिन मतलब इट्स नॉट फंक्शनिंग, तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 2-3 दिन बाद कनेक्ट कर लेना इस पे। हाँ दिवशी सर ले लेंगे, ओके हो गया हनी, वी कैन दिस। वो सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड है मोहित। एमपी के लोकल लॉज वी विल डील विद इट वंस एमपी अराइव्स। बोला नहीं, श्योर कॉस्टो। चलो गाइस, ओके भाई, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें लाइन अप रहेंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। एक एक जो आप लोगों के पॉइंट्स हैं वो सारे एड्रेस हो जाएंगे। आप लोग का फैमिली लॉ हो जाएगा, आप लोग का सीआरपीसी हो जाएगा, और आपका आखिरी वो क्या पॉइंट था, जजमेंट राइटिंग, वो भी हो जाएगा। जजमेंट राइटिंग के नोट्स भी हो जाएंगे, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली क्लास इज ऑलमोस्ट डन, ओके। चलो यार, एवरीथिंग विल बी डन नाउ माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार प्लीज मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि बहुत भयंकर डिस्कशन किया मैंने। जस्ट quickly let me know in the chat box में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया, प्लीज बता दो। श्योर श्योर श्योर, चलो आप बोल दो जय हिंद भाई, फेयर एनफ, ठीक है। हाँ डीएम पे सबने मैसेज किया, सब डीएम पे देख लेंगे, पक्का देख लेंगे। चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के साथ समाप्त करते हैं। इट वाज अ ग्रेट क्लास, थैंक यू सो वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेल बचाओ, जियो और जीने दो, एंड कल लीगल पॉडकास्ट है 8 बजे, उसमें आना, मजा आएगा, ठीक है, वो मैं कल भी बताऊंगा। चलो जय।
आजकल आपको सारी बातें खुद से जिक्र करने लगी। सोच रहे थे आप सफर के थकान उतार रहे होंगे, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। आजकल आप कुछ नहीं सोच रहे हैं।